this is not just fraud. They destroyed lives. They crushed families. They buried dreams. My friends, let me to explain what Bahria town did with 750 families in Nawab Shah. It's a shocking news. I am Dr. Abdul Rashid, former Chief Operating Officer, Bahria Town, Nawab Shah. Once I was the loudest voice of Malak Riaz in Bahria Town. Today I am the loudest voice for victims of Bahria Town. This is episode 1, Bahria Town Crime Files. I am now exposing the Bahria Town's corruptions, land grabbing, money laundering, and betrayal with solid and concrete evidences. We are exposing Bahria Town from the small city of Pakistan, Nawab Shah, from where the Bahria Town looted millions from 750 families. Almost 300 people paid their full installment, but still nobody received a single possession. And the owners of the Bahria Town, the Malak Riaz Hussain, the chairman, and his son, CEO Bahria Town, Ali Riaz Malk, and the country head, Shahid Qureshi, they fled to the Dubai. Today I am telling you some shocking truth about the Bahria Town, Nawab Shah. That this project is still not in the name of Bahria Town. It is in the name of a private individual. His name is Mr. Awais. Number 2, and that is most important, that this project is not approved by Sindh Building Control Authority. Number 3, in 2014 to 15, now it is 2025, there is no electricity, no gas, and the whole project is running only on 3 old generators. From 2015, now today is 2025, Bahria Town did not receive any single NOC from Government of Pakistan or Government of Sindh. That is also a most important thing, so they don't care about the NOC. There are so many cases pending in different courts of the Sindh, and people claim that the Bahria Town by force grabbed their lands. Number 6, in last 3 months, 3 people died, and 2 people, they paid the full payments, but they did not receive anything. The last month, Mr. Gul Hassan Kirio, he has also the big family. Mr. Gul Hassan booked 2 plots of 500 square yards each, and 1 6 marla villa and 1 8 marla villa, and he paid more than 17 millions in the last 10 years. Bahria Town, Nawab Shah is silence, no justice. Here is the colorful brochure of 2015 when the Bahria Town, Nawab Shah first time launched, and they promised a lot, but after 2015 to 2019 nothing was done, no development, no anything, only collected money from the people of Nawab Shah. And now after 2019 they again relaunched the project, and here is an other brochure with more promises. More things are coming, more promises, but nothing have happened. There is still no electricity, there's no gas, there's no approval from Sindh Building Control Authority, there is no NOC, and still there are so many cases pending in the different courts of the Sindh. And
almost 300 people paid the full installment out of 750, but no, they have not given any single possession to any single customer. So where is the justice? And the owners, they fled to the Dubai with all high officials of the Bahria town, including his son CEO Ali Riaz Malik and country head Bahria town Shahid Qureshi, and looted billions dollars all over from the Pakistan and left the people of Pakistan in tears and suffering. So who is responsible and who will provide the justice to these poor and suffering people who are still in the distress, in the tension, in the anxiety? Where should... My friend, this shocking truth have been remained silence for a long time, but no more. I will not stay silence. I will be your voice. Just join me. When I joined the Bahria town Washa in 2019, when I took the charge, I was shocked. It was completely a dead project. But I was not hopeless. I took as a challenge and started to work. At that time, no customer was paying a single installment. Even who has left only one installment was not ready to pay the last installment. I accept that challenges and then went to customers' house door to door and convinced their families and them, and I also gave them assurance that after installments you will get your possession very soon. People trusted me, and then they started to submit their remaining installments, and it was a shocking for whole Bahria town Nawabshah that within the 3 months I collected 55 million rupees. It was unbelievable and very surprising, and people started saying that the dead horse is come back to life. लेकिन उसके बाद वहां पर कोई काम नहीं हो रहा था, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, तो आपको मैंने कहा कि इसकी प्राइस कम करते हैं, तो आपने मेहरबानी की प्राइसेस कम की और हमने उसको दोबारा रिलॉन्च किया 2019 में। और अल्लाह का शुक्र है कि 1 हफ्ते के अंदर जब रिलॉन्च हुआ तो रात को 2 गाड़ियां आई थी, इतना कैश जमा हो गया था जो है, जहां 1 रुपया नहीं आ रहा था वहां हमने 1 हफ्ते के अंदर 3.25 अरब की जो है सेल की। लेकिन वहां किस्तें आना धड़ाधड़ शुरू हो गई, लेकिन आपके बेटे ने वहां कोई मुझे काम नहीं करने दिया और वो जो भी पैसे आते थे वो कहीं और लगते थे और नवाबशाह का प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रहा, लोग परेशान होते रहे। मैंने कई दफा आपको कहा था कि इस प्रोजेक्ट में जो काफी मसाइल हैं उनको जो है हल करे। मुझे तो पता नहीं था कि ये जमीन जो है बहरिया टाउन के नाम पर भी नहीं है। मैंने कहा अवैस से आप ये जमीन ले लें, और मैंने इलेक्ट्रिसिटी वालों से भी बातचीत हो रही थी, वो कुछ पैसे मांग रहे थे जो पता है आपको, वो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिए थे, तो उससे सुई गैस और आपकी बिजली भी आ जाती, लेकिन वो भी नहीं किया गया। उसके अलावा लोगों के कुछ कब्जे थे, काफी कोर्टों से मैंने केस भी क्लियर कराए, आपके इल्म में है, वो भी सबके इल्म में है। उसके अलावा जो है यहाँ सुई गैस का जो है इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा मसला था, उसको भी मैंने हल कराने की कोशिश की, और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सबसे बड़ा मसला था उसको हल करने की कोशिश की कि मैं करवा सकता हूं, और बहुत सारी एनओसी के लिए भी मैंने कोशिश की कि ये जरूरी मसाइल हैं जो हमें आगे चलकर बहुत तकलीफ देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और लोगों से सिर्फ पैसे वसूल करते रहे और कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। लोग फिर
होने लगे तो मैं क्या करता, कई दफा आपको कहा, आपने कहा 100-150 घर बना ले, लोगों को इन करे। भाई मेरे पास तो पावर ही नहीं थे, मैं क्या करता, आपका बेटा सुनता नहीं था। जो जरूरी काम थे वो नहीं हुए। जो पुराने कस्टमर थे मैंने कहा पहले उनको एडजस्ट करें, उस पर भी वो नाराज हो गया, तो मैं क्या करता, मतलब के तो आपने तो, आपके बेटे ने तो ये बहुत बड़ा जो है जुल्म किया है। मतलब के वो शाहिद कुरैशी ने मुझे सही कहा था कि आपका वीएन, मलक रियाज साहब का वीएन बहुत बड़ा है, उसके बेटा अली रियाज का दिमाग एक ढक्कन की तरह है, तो वो ढक्कन ही रहा, तो उस ढक्कन को आपने मेरे ऊपर मुसलत कर दिया और सारे पावर्स तो उसके, आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आपकी तो कोई चल ही नहीं रही थी। मैंने आपको खत में भी लिखा था कि मतलब कि आपने बड़ी मेहनत से 40-45 साल से इसको बनाया है, लेकिन अब इस पे कब्जा और है, तो आपको भी उसका, इस चीज का अच्छी तरह एहसास है। तो अगर आपने मुझसे ये काम नहीं करवाना था तो फिर मुझे बुलाया क्यों गया? अब मेरी वजह से लोगों ने, जो मैं डोर टू डोर गया हूं, जो आखिरी किस्त भी नहीं भर रहे थे, उनसे मैंने करोड़ों रुपए जमा कराया है, उसका जिम्मेवार क्या है? मैं भी आपके साथ जो है शरीक जुर्म हो गया हूं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मलक साहब, ये आपकी भी आखिरी उम्र है, मेरी, हम भी आखिरी उम्र में है। आपके बेटे ने तो आपको मफरूर बना दिया है। आपकी कितनी बड़ी इज्जत थी, आपकी कितनी बड़ी खिदमत थी, पाकिस्तान में आपको कुछ भी नहीं होता, और आप ये कह रहे थे कि मतलब कि मैं बाहर जो है कारोबार करने को हराम समझता हूँ, और आप समझते हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। मैं पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट करना हराम समझता हूँ। बाहर इन्वेस्टमेंट करना आप हराम समझता हूँ। दुबई में छोटी सी बिल्डिंग मेरे पास है, और मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के बाहर नहीं है। मैंने गवर्नमेंट की 1 इंच जमीन नहीं ली, ना खरीदी है, कि हमने गवर्नमेंट की 1 फुट जमीन नहीं खरीदी, तो कोई पैसा नहीं दिया। कुछ एंकर्स को आपने मकान नहीं दिया? हमने कोई मकान नहीं दिया। लेकिन आपके बेटे ने आपके साथ ज्यादती की है, आपको मफरूर बना दिया है, और आपके ऊपर इतने, अगर आप पाकिस्तान में होते तो आप सबको आसानी से फेस कर सकते थे, लेकिन आपके बेटे ने आपको बर्बाद कर दिया। वो सही कहते हैं लोग, सही शाहिद कुरैशी ने कहा कि आपके बेटे का दिमाग जो ढक्कन है, और जो जुल्म और ज्यादती हुई है, वो इन पिछले 11 सालों में ही हुई है। मैं जानता हूं आपकी खिदमत को कोई भी रद्द नहीं कर सकता, आपकी खिदमत किसी हीरो से कम नहीं है, लेकिन उस सब पर जो है आपके बेटे ने जो है पानी फेर दिया है। ये मैसेज मलक साहब आपके लिए है। आपने मुझे अमेरिका से बुलाया और जो है सारे इख्तियारात भी दिए। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब मेरे और बैरियर टाउन के एक बात तमाद साथी हैं। आप पूरे इत्मीनान के साथ मेरे और बैरियर टाउन के हवाले से इन पर नवाब शाह के प्रोजेक्ट के मतलब इत्मीनान कर सकते हैं, और नवाब शाह का प्रोजेक्ट ये आप हैंडल करेंगे और मार्केटिंग भी ये करेंगे, और पेमेंट थ्रू पे ऑर्डर बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड करनी पड़ेगी, और टैक्स में आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और बैरियर टाउन को भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी मामला सारे डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब देखेंगे, और ये बैरियर टाउन के और मेरे नुमाइंदे और हमारे बहुत ही करीबी साथी हैं। फिर एडमिरल हयात को क्यों उसने इख्तियारात दिए? और आपने मुझे कहा था नहीं नहीं, जो मैंने कह दिया वही होगा, आप ही रहेंगे और आप ही कंट्रोल करेंगे। आपके मैसेजेस भी पड़े हुए हैं, और आपने कहा रिलैक्स हो जाए, यू आर माय ब्रदर। नहीं, वो आप फाइनल हैं, बस जो मैंने कह दिया वो आप फाइनल हैं बस। कल मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करूंगा, और इंशाल्लाह जो आप चाह रहे हैं इसी तरह होगा इंशाल्लाह। डोंट वरी, रिलैक्स, यू आर माय ब्रदर। फिर मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे हो गई, और आपने अपना एक ही वादा 4 दफा तोड़ने पर मजबूर क्यों हुए? एक दफा जो ARY के जो ओनर थे उनके सामने आपने कहा कि एडमिरल हयात का कोई काम नहीं है, अब सिर्फ डॉक्टर रशीद हर चीज को बैरियर टाउन नवाब शाह को हैंडल करेगा। अब CEO अहमद हयात जो है बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। और फिर आपके बेटे ने किस तरह से मेरे पावर्स खत्म कर दिए, और दोबारा एडमिरल हयात को ही बैरियर टाउन नवाब शाह का CEO रखा, और मुझे एक पावरलेस पोस्ट दी गई जो देखने में तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके इख्तियारात 0 थे। मलक साहब,
5-6 माह पहले आपने दोबारा मुझे अमेरिका में एक मैसेज सेंड किया। अगर अमेरिका से वापस आना चाहता हूँ तो इख्तियारात दिलाता हूँ, फुल इख्तियारात दिलाता हूँ, फुल इख्तियारात दिलाता हूँ। इस मौके पर एक शेर याद आ गया, गजब किया तेरे वादे पे इतबार किया, वो पहले मेरे साथ हो चुका है अब नहीं। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। बहरिया टाउन दुबई किसी की लाशों पर बनने नहीं दूंगा, पहले इन मजलूमों का हिसाब देना होगा। आप अपना प्लान मुझे दें, अगर वापस आना चाहते हैं तो इसी प्रोजेक्ट को आप, मैं इख्तियारात दिलाता हूँ आपको और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपको, और इसको आप पर काम भी किया हुआ है और आपको फुल इख्तियारात देंगे कि आप फुल इख्तियारात के साथ काम करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको करोड़ों रुपए की सेल करके दे दी। और जब मैंने चार्ज लिया था तो लोग कह रहे थे कि ये तो चलेगा नहीं, और मेरे लिए भी ये शॉकिंग न्यूज़ थी कि जब मैं गया तो एक आदमी एक किस्त भी जमा नहीं करा रहा था। जिनकी एक किस्त रह गई थी वो भी आखिरी किस्त जमा कराने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैं तो परेशान हो गया था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और मैंने उस चैलेंज को कबूल किया और आपके नाम पर डोर टू डोर लोगों के घरों में गया। और जहां महीने में 1 लाख भी नहीं आ रहा था, मैंने जो है 3 महीने के अंदर 5.5 करोड़ रुपए जमा कराए और लोग हैरान रह गए। सारा बहरिया टाउन हैरान रह गया कि इस मुर्दा घोड़े में जो है जान पड़ गई है। बल्कि वहां के जो लोग आते थे बहरिया टाउन कराची से, वो भी कहते थे, बल्कि एक जो है वहां का जिसको मास्टर ऑफ लैंड कहते हैं, जनरल मैनेजर रफीक साहब, उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप मुर्दा घोड़ा नहीं, आप इसको मुर्दा हाथी कहो। ये तो प्रोजेक्ट चलने ही वाला नहीं था, लेकिन मैंने आपको वो चला कर दिखाया। अब ये 750 फैमिलियां हैं नवाबशाह की, ये कहां पर जाएंगी, किसके पास फरियाद लेकर जाएंगी? डॉलर का रेट देख ले, 214-15 से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसको अब 10-11 साल हो गए हैं। तो लोगों की आहें और बद्दुआएं न ले। ये 2 लोग अब मरने के करीब हैं, एक कैंसर का पेशेंट है और दूसरा जो है दिल का मरीज है। दोनों सीवियर और क्रिटिकल कंडीशन में है। एक के 28 लाख है और दूसरे के 85 लाख है। और इनकी जो वीडियोस हैं, अगर वो मैं आपको सेंड करूं तो हर आदमी जो है रोने लगेगा। अगर इनको 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट नहीं की गई तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में इनकी वीडियोस जो है अपलोड कर दूंगा और दुनिया देखेगी कि इनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। इनको इनके साथ इंसाफ करें और इनको कंपनसेट के साथ जो है पैसे वापस कर दें। इनकी बद्दुआएं आहें लेकर रात को हम सुकून की नींद नहीं सो सकते। तो खुदारा उन पर रहम करें, जो उनका हक बनता है उनको वापस करें। और आप ये कर सकते हैं, ये एक मामूली सी रकम है। नवाबशाह का प्रोजेक्ट एक छोटी सी है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। और जब 215 में भी आपने ये प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम लॉन्च किया तो लाखों लोग आए। 17,500 लोगों से आपने फी आदमी 31,000 इकट्ठे किए, जो तकरीबन 54-55 करोड़ बनता है। सिर्फ 400 लोगों को रिफंड में वापस किया। अभी भी 17,000 से ज्यादा लोग आज भी धक्के खा रहे हैं। यार 54-55 करोड़ आपके कुछ भी नहीं है, ये उनको वापस कर दें। लेकिन अब जो बड़ा बड़ा अमाउंट है, किसी के 20 लाख, किसी के 30, किसी के 80, किसी का 1.5 करोड़, किसी के 2 करोड़, किसी के 4 करोड़, ये कहाँ जाएंगे यार? ये मैंने इकट्ठे किए थे, मतलब के मुझे भी जो है ये मुझे इन बद्दुआओं से निकालें यार। मैंने कोई कसूर नहीं किया। रुपया खर्च किया, मुझे क्या सिला दिया आपने? अगर कोई सबसे बड़ा आपका फैन था तो मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। जो कुछ मैंने किया वो दुनिया जानती है, आप जानते हैं। अगर कोई है तो उसको सामने लाएं। किसी ने मेरे मुकाबले में अगर 10% भी काम किया है तो आप बताएं। मैं कोर्टों में आपके साथ लड़ता रहा हूं, अपनी जेब से करोड़ों रुपए खर्च किए। अब ये जुल्म न करें, उनको पैसे वापस करें। ये आपके बेटे ने ज्यादती की है। मुझे पता है आपका दिल नरम है, आप ये कर सकते हैं। आप
उस पर जोर डालें, वापस आ जाएं यार, इन लोगों को पैसा वापस करें। लेकिन अगर इन लोगों का पैसा वापस नहीं हुआ, उनको उनका हक नहीं दिया, तो फिर ये मेरी मूवमेंट चलेगी। और ये मैंने मूवमेंट शुरू कर दी है, और ये बहरिया टाउन क्राइम फाइल्स बन चुका है। ये इसका एपिसोड 1 है, और जो सबूत और जो शवाहिद, जो एविडेंसेस, जो मतलब के पत्थर पर लकीर है, जो मेरे पास सबूत है, जो मैंने इकट्ठे किए हैं, उनको ना आप डिनाई कर सकते हैं या दुनिया की कोई ताकत और कोई कोर्ट डिनाई नहीं कर सकती। मैं फिर इंटरनेशनल तौर पे लगूंगा, मैं इंटरनेशनल तौर पे ह्यूमन राइट्स के पास जाऊंगा। मैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद राशिद बिन अल मखतूम को, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को उनके पास लेकर जाऊंगा, और उनके जो है उनको रिक्वेस्ट करूंगा। मैं उनका जो डिपार्टमेंट है, लैंड डिपार्टमेंट, उसके पास जाऊंगा, और जो आपका जो है चीफ जस्टिस दुबई के, उनके पास हम जो है रिट दाखिल करेंगे। और जिन्होंने आपको ये प्रोजेक्ट दिया है, जो है खलीफा अल-जाफीन और नबील अल-कुंडी, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा। हम वहां की ह्यूमन राइट्स के पास जाएंगे, लैंड डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, उन सब के पास जाएंगे और सबूतों के साथ जाएंगे कि आप लोगों ने जो है बहुत बड़ी ज्यादती की है। मैं नहीं जानता आपने कराची में कितना जुल्म किया है, वो आप जाने, आपका काम ये। लेकिन मेरे हाथ से जो पैसे गए हैं, जो मैंने लोगों से वसूली की है, जो मैंने उनसे प्रॉमिस किया है, वो आपको वापस करने पड़ेंगे। नहीं तो मैं मूवमेंट चलाऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो मैं उनको कंपनसेट भी कराऊंगा। जो ज्यादतियां की हैं वो उनको पैसा वापस होगा, या मुझे अथॉरिटी दे, लेकिन मैं नवाबशाह नहीं जाऊंगा। यहीं से लिंक वीडियो पर जो है आपका एडमिरल हयात भी लगा चलाता रहा है ना। वो 35 करोड़ रुपए वहां खर्च करके एक बिल्डिंग बना के उसका क्या करना था यार? वो 35 करोड़ आपका स्कूल जो इनकम्प्लीट था वो बन सकता था, डिस्पेंसरी आपकी बन सकती थी, और आपकी जो मस्जिद एक ही है बड़ी मस्जिद वो बन सकती थी, और आपके 19 घर जो इनकम्प्लीट हैं 6 मरला 8 मरला के, ये सारे काम हो जाते, और सिक्योरिटी वॉल बनना शुरू हो जाती। और जो मैंने कहा है गैस, बिजली और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एनओसीज, ये सारे काम हो जाते, कर नहीं दिया गया। अब नहीं किया है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैंने तो इस पर मुर्दा प्रोजेक्ट को जिंदा कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने चलाने नहीं दिया। अब जब आप नहीं चला रहे हैं तो आप लोगों के जो है पैसे वापस करें डॉलर के इन्फ्लेशन के साथ, या तो फिर पोजीशन दे। दोनों में से कोई एक काम तो होना है, या तो मैं मरूंगा या तो फिर इन लोगों को जो है इनको उनका हक दिलाऊंगा। अब देखते हैं जीत किसकी होती है। आप लोग चाइना में होते तो ये 750 फाइलें आपके लिए फांसी का फंदा बना देता। मलक साहब, अमेरिका से बुलाकर जो बर्बादी आपने मेरी करनी थी वो आप लोगों ने कर ली। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है भी नहीं, रही जान तो न उसकी पहले परवाह थी और न आज है। आपने उन लोगों को करना है जिनके साथ आपने जुल्म किया है, ज्यादती की है, उनका हक छीना है, उनसे पैसे लिए हैं, इस प्रोजेक्ट को छुपाया गया है। बड़ी मुश्किल से मैं इसको जो है मैप पर लेकर आया था, फ्रंट पेज पर लेकर आया था, लेकिन उसको आपने छुपाने की बहुत कोशिश की। ये छुपेगा नहीं, ये जुल्म अब छुपने वाला नहीं है। जो लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी या तख्त परी या जहां पर भी होता है, मरी में आपने जो कुछ किया है, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। जो मेरे हाथ से हुआ है वो पैसे कंपनसेट के साथ आपको देने पड़ेंगे, हर हालत में देने पड़ेंगे। नहीं तो मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ दुबई के पास जाऊंगा, और फिर उसी के साथ उसी दिन उसी टाइम में हम हिज हाइनेस जो सबसे बड़े हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और दुबई के जो है बादशाह भी हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद, हम उनको मिन्नतें करेंगे, अपीलें करेंगे और अपना हक लेकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपके लिए, आपके बेटे के लिए यही बेहतर है कि हमें हमारा हक जो है, नवाबशाह वालों को उनका हक वापस करें प्लीज। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, तो मैं भी थोड़ा सुकून के साथ सोऊंगा, और आपको भी